Okay, fine. Let's start this process formally. So it has been a habit of mine to keep everything informal. So somehow you will find that the session will be going in little informal manner only. Okay, first of all, again, a formal congratulations for achieving rank 269 this year in UPSC Civil Services examination. Hopefully, you will be Thank you, getting sir. IAS only, and congratulations for your desired service as well. Okay, Thank you so so much. basically, apart from that, first of all, I would like to thank you to come at very short notice and at this hour, basically to talk about the means and other perspectives and situations that you have dealt in the process of the examinations. You Okay, don't have to so do that, sir. I think it is likewise. जब हम preparation कर रहे थे, so you were always very responsive. मतलब I think जब भी आपको message किया and within 10 minutes we were speaking, and all our sessions happen after 10 o'clock only. I think interview वगैरह के. So we are used to that thing right now. That's so nice of you. Okay, fine. So, very first question, Anu, I will not go into that formal setup and all. Okay. So, we have been aspirant. Okay. So, now you are basking the glory, I will say. But I would like you to go back to your aspirant life and live the moments where you were just before 1 month or 2 months before the mains examination. What was your mindset and what kind of situation were you in last year? What different you did from the last several years? Since your journey was quite long, struggling, we were not from the one of the fortunate aspirants, those who get their desired service within 1 or 2 attempts. So I would love to take you back and cherish those hustling and jostling moments again. Sir, I would like to divide my journey of 5-6 years. Say first 4 attempts, first 3 attempts, and the last 2 attempts. I think there was a drastic difference if we see in the last first 3 and the last 2 attempts. And if you ask me what I was feeling, say 2 months, when I think we had given our mains in January. So let's speak about say November. So, sir, I was extremely confident this time because I knew that I was ticking all the right boxes, and that was because I was very clear in my head that what I'm going to do. For example, I'll tell you, in the first 3 mains, I've given all my 5 attempts. So in the first 3 mains, things were very haphazard. Things were like what was happening. मैं किसी चीज को control नहीं कर रहा था. Things were happening and I was being controlled in a way. But in the last 2 attempts, especially in this attempt, I was very sure that what I'm going to do, and this is my strategy. And I was internally also I was very sure that this will actually give me result. एंड एक जो जो डिफरेंस है, जब मेन डिफरेंस बिटवीन लास्ट अटेम्प्ट एंड फ्यू डिफरेंट अटेम्प्ट्स, वो आई थिंक एसओएमपी, मतलब एज एन एसओएमपी टीम यू हैव ऑलवेज केप्ट ऑन एम्फेसाइजिंग अपॉन दैट. वो मतलब आई टेल यू कि दैट इज ब्रह्मास्त्र, कि वो एक तरीका से आपको रिजल्ट में लाएगा, मतलब फाइनल पीडीएफ में लाएगा, नॉट मेंस क्लियर कराएगा. एंड दैट इज नोट्स मेकिंग, जो कि मतलब आई वाजंट डूइंग इन द फर्स्ट 3 attempts. In the last 2 attempts, especially in the last attempt, this time also my focus was that I should have my notes prepared for every single topic of syllabus. One, that, and second, the current affairs main topic. So if these things are ready, I am very very sure of all these things, then I was sure कि questions कुछ भी I'll be able to attempt. But if you see in the first 3 attempts, thing was कि जो भी आ रहा है मन में, पूरा एक मेंस का 365 उठा लिया, सारे टॉपिक्स का वो एक टाइप का रट्टे मार लिए, एंड बस वी थॉट कि लॉट ऑफ कंटेंट है, इंग्लिश थोड़ा ठीक आता है, तो वी आई वेंट देयर कॉन्फिडेंटली एंड आई रोट, एंड वो मतलब लकीली आई क्लियर द एग्जाम, मतलब क्लियर द मेंस. बट वो फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके नहीं गया. सो आई थिंक यही एक डिफरेंस था. तो ये जो प्रोसेस था चीजें ठीक करने का, इस पे किस एरिया पे ज्यादा जोर दिया गया आपकी साइड से, वेदर इट इज कंटेंट एनरिचमेंट और राइटिंग स्किल, और आई विल से टू एड अपॉन द फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्या किया, जो मतलब बेसिकली प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे. ओके, सो सर आई विल जस्ट टॉक अबाउट द मेंस प्रोसेस, क्योंकि वही पर या मार्क्स का जो पूरा डिफरेंस है. तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज आई टोल्ड यू, कि एक ये था कंटेंट एनरिचमेंट, और वो भी एनरिचमेंट नहीं सर, आई वुड से दैट एज एस्पिरेंट्स जो भी 2-3 साल का, इफ यू हैव सम बेसिक अमाउंट ऑफ नॉलेज, वी थिंक कि सब आता है. मतलब इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट पुलिस, आई विल टेल यू. इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट जुडिशियरी, आई विल टेल यू.
बट देन वो सर बहुत वो है रैंडम वे में है. इफ यू आस्क मी टुडे आई विल गिव यू सम अदर स्टैटिस्टिक्स, इफ यू आस्क मी टुमारो आई विल गिव यू सम अदर स्टैटिस्टिक्स. बट एक नोट्स जो मेरा था एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम GS1 टू GS4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज एक्सट्रीमली श्योर कि एवरी टॉपिक का मेरे पास क्या नोट्स है, क्या कंटेंट है और उसमें मैं क्या एनरिच कर रहा हूँ. तो एक तो यही था सर. सेकंड जो कि इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर, दैट वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई थिंक दैट आई निग्लेक्टेड एंटायरली. और सर आई विल टेल यू हाउ आई हाउ आई रिकॉग्नाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस. बिकॉज जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट लिख रहा था मेंस, तो मेरे माइंड में आ रहा है यार ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन आया था, सेकंड अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन आया था, एंड आई वाज scolding myself that I was not doing the basics. मतलब I am writing again and again means वो same questions repeat हो रहे हैं and I am not doing anything about it. So what I did last year, especially from fourth and fifth attempt, was कि मैंने last 5 साल के question paper निकाले और सारे themes जो भी themes है, I was not trying to answer those questions. I was trying to make notes on those themes. For example, sir, I'll tell you questions mostly repeated है. जैसे पेपर 1 में डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आना ही है. फ्रॉम 3 सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म का क्वेश्चन आना ही आना है. ज्योग्राफी में अंटार्कटिक, आर्कटिक, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये सब सर रिपीटेड थीम्स है. मतलब यू आर बाउंड टू गेट क्वेश्चंस ऑन दैट. सिमिलरली पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म. ऑल दीज थिंग्स आई क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ थीम्स व्हिच आर बीइंग रिपीटेड एंड आई प्रिपेयर्ड नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन दैट. तो सेकंड व्हाट सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Thirdly, sir, what I did कि previous year questions में भी sir, if we analyze it more deeper way, sir, questions भी ear marked है कि इस question में यही theme आएगा. For example, I'll give you sir, जैसे GS, yes, I was just making, just give me a second sir. हाँ, अगर आप GS2 में देखो तो 9th, 10th, 19th and 20th question will always be on IR. ये आप लास्ट 5 साल का देख लो, 9th, 10th, 19, 20. Similarly, GS3 में 9th, 10th, 19, 20 will always be will always be on internal security 9 10 19 20. और वही चीज 18th क्वेश्चन में डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा. सो द क्वेश्चंस आर आल्सो ईयर मार्क्ड सर. सो व्हाट आई डिड कि दीज आर द थीम्स, ये जो मैं मेरे को नोट्स नहीं भी रहे तो आई कैन राइट इट. 12 o'clock also you wake me up and you tell me Anup write a answer on IR, I'll be able to write. तो इसीलिए आई स्ट्रेटेजाइज इन सच अ वे कि मैं पहले 5 मिनट जो मिलते हैं हमें विद द पेपर व्हाइल राइट अटेम्प्टिंग द यूपीएससी पेपर, आई मार्क्ड टॉप 10 में कि जो मेरे को 4-5 अच्छे से आते हैं. एंड आई स्टार्टेड विद 11th क्वेश्चन. 11 से 20 फिनिश कर लिया 1.5 hours 1 hour 45 मिनट्स में. उसके बाद जो कि मेरे पास बचते हैं अराउंड 1 hour 15 मिनट्स और पहले 10 क्वेश्चन बचते हैं, तो मैं अपने अच्छे टाइम उसी को दिया जो क्वेश्चंस आई वाज वेरी श्योर ऑफ, व्हिच आई हैड लॉट ऑफ कंटेंट, सो दैट एट द लास्ट 15 20 30 मिनट्स इवन इफ आई हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, दो शुड बी दोस क्वेश्चन जिसमें मेरे पास कंटेंट नहीं है या कोई भी आइडिया नहीं है. क्योंकि सर तब तो एकदम ब्रेन ऐसे ही चलता है लास्ट 15-20 मिनट्स. यू कैन आई विल गिव यू अ थीम एंड यू विल राइट 10 पेजेस ऑन दैट. So this was another thing कि मैं जो इसको चेंज किया कि मतलब I tried to understand the exam process और कैसे मेरे को 3 घंटे स्पेंड करने हैं. वो चीज जो मैं पहले कभी नहीं करता था वो किया. तो नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड फाइनली सर डायग्राम. मतलब फॉर मी इन द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स डायग्राम वाज मतलब इंडिया का मैप. ये हमारे लिए डायग्राम है. अगर मैं ये बना के आ गया तो आई वुड कम एंड टेल यू कि सर बहुत सारे डायग्राम्स बना दिए. बट ये रियलाइजेशन सर लास्ट अटेम्प्ट में आया कि नो, मैप इज ओनली अ पार्ट ऑफ डायग्राम. तो डायग्राम में मैंने क्या किया कि आई जस्ट टुक अ रैंडम नोटबुक ओपन और उसमें सर मैंने रैंडम डायग्राम बनाने चालू कर दिया. आई डिड नॉट कैटेगराइज इनटू GS 1 2 3 4. जहां भी डायग्राम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में मिलते हैं तो मैंने वहां बना दिए. अगर अपने से कुछ बन रहा है तो वो कर दिया. न्यूज़पेपर में आ रहा है वो बना दिया. एंड सर यू विल नॉट बिलीव इतना अच्छा ये चीज हुआ कि नाउ यू विल गिव मी कंटेंट एंड आई विल बी एबल टू मेक अ डायग्राम ऑन दैट. मतलब रैंडमली आई कैन मेक अ डायग्राम ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये चीज सर एग्जाम में बहुत हेल्प किया. Because now I could make diagram depending upon the content which I am making during the exam. तो ये सब चीजें सब जो मैं पहले कभी नहीं किया था, this I did this time. तो अनुप डायग्राम के ऊपर ही बात करते हैं. लाइक व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ योर डायग्राम्स? वर इट यूज नाउ कुरुक्षेत्र और यू वर फॉलोइंग सर्टेन थिंग और यू वर मेकिंग इट ऑन योर ओन? सर बोथ दी थिंग्स. तो एक तो ये था कि पहले क्या कर दिया मैंने कि जितने भी थीम्स थे सिलेबस के, फॉर एग्जांपल SHG हो गया, जो भी पुलिस हो गया, कुछ भी हो गया, सो आई वाज जस्ट रैंडमली टाइपिंग दोस थिंग्स इन ऑन गूगल और जो भी डायग्राम मिलते मेरे को लगता है अगर इफ इट्स प्रेजेंटेबल आई विल मेक दैट. एक तो ये हो गया. दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे से टेस्ट सीरीज आते हैं मार्केट में और टेस्ट सीरीज में भी सर बहुत सारे डायग्राम्स बने रहते हैं. तो मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी नहीं देखता था, खाली ऊपर से खोल के डायग्राम दिखता था. कुछ भी डायग्राम मिल गया उसको अपने से लिख, उसका फोटो ले लिया उसमें और घर आके वो डायग्राम बना दिया. तो ये था. तीसरा सर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि हाउ डायग्राम इज मेड. तो फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे एक सर वो था कि लास्ट ईयर का NFHS का रिपोर्ट था कि women who are educated for more than 12th standard, उनका TFR रेट बहुत लो है. whereas women जो 12th से नीचे एजुकेटेड है, फॉर एग्जांपल 8th standard 9th standard, उनका TFR रेट इज वेरी हाई.
तो सर आई मेड अ ग्राफ, यहाँ पे विमेन का एजुकेशन लिखा, यहाँ TFR लेवल लिखा, और TFR लेवल इज हाई दैट मींस विमेन एजुकेशन इज लो, TFR लेवल इज लो दैट मींस विमेन एजुकेशन इज हाई, और ऐसे वो कर्व बना दिया। तो सर लाइक दिस मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, एंड आई टेल यू, आई शेयर द डायग्राम बुक विथ यू, वो पूरा एक बुक बन गया जिसमें न्यूज़पेपर का भी डायग्राम आ गया, मेंस का आंसर का टेस्ट सीरीज आ गया। इनफैक्ट ये भी है, SOMP में भी बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स निकाले थे लास्ट ईयर के फ्रॉम दी टेलीग्राम ग्रुप, तो मैंने उनके भी आंसर शीट देख लिया रैंडमली, और वहां भी कोई डायग्राम मिलता तो आई वुड जस्ट कॉपीड दैट। अगर वो अच्छा नहीं है तो आफ्टर ड्राइंग दैट आई वुड स्ट्राइक इट आउट, बट देन एक बार के लिए मेरा सारा डायग्राम उस बुक में था, तो जो भी सोर्स मिलते आई वुड हैव जस्ट ड्रॉन द डायग्राम देयर। ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, विशियस वर्चुअस साइकिल हो गया, मैप हो गया, एवरीथिंग। और जिसका भी 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स है, हेक्सागन बना दिया, ट्राइंगल बना के उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोस थिंग्स, मतलब आई डिड इट इन वेरी सर व्हाट यू कॉल एक्सट्रीम वे, इफ आई से। So it was like then your diagram making process है, I think somehow it is nothing but a kind of short notes for you as well, revision करने में भी काफी help किया होगा। सर मतलब आप मानोगे नहीं, मैं एक्चुअली डायग्राम जब बनाया था तो माइंडसेट यही था कि डायग्राम बनाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, बट सर इट कैन हैव अ एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट। आई टेल यू हाउ। 2020 में क्वेश्चन आया था सर, जल शक्ति अभियान, और मतलब वी वर ऑल टेकन, मतलब हम एवरीवन हैड हर्ड कि जल शक्ति क्या है, बट सर 15 मार्क्स का कंटेंट लिखना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। बट बिकॉज आई हैड दैट डायग्राम जिसका 5 पार्ट मैंने डायग्राम में बना लिया था, तो सर आई रिमेंबर दैट डायग्राम, वो 5 पार्ट को ही आई कुड जस्ट एक्सटेंडेड, और उसका एक आंसर बन गया। तो एक तरीका से सर मतलब इट्स एन वेरी 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 इजी प्रोसेस टू रिमेंबर, वे टू रिमेंबर, एनीथिंग कैन बी रिमेंबर्ड देयर। माय फूड प्रोसेसिंग का मेरे पूरा एक चार्ट था जिसमें खाली स्टैटिस्टिक्स लिखा है सर, कि व्हाट इज द जीडीपी, हाउ मच इट इज एम्प्लॉयिंग एक्सेट्रा, एंड नाउ दैट चार्ट इज पूरा एनग्रेव्ड है। अभी भी इफ यू टेल मी, गिव मी अ नोट्स थिंग, आई विल शो यू दैट डायग्राम थिंग। ओके, सो अब थोड़ा सा पेपर वाइज बात करते हैं, लाइक GS1। तो GS1 काफी एप्लीकेशन बेस्ड आता है क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक का बेस है, बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और आई थिंक व्हाट एस्पायरेंट्स डू, GS1 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे थिंक कि मतलब काफी कुछ प्रीलिम से आ रहा है तो हो ही जाएगा। तो हाउ टू टैकल दिस माइंडसेट? सर अगेन आई थिंक इसका बेस्ट सोल्यूशन इज नोट्स मेकिंग। आई टेल यू हाउ। लीव अपार्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बार के लिए, लेट्स स्टार्ट विद सोसाइटी। सर पूरे की टर्म्स है, पूरे मतलब यू कैन सी देयर आर एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स देयर, दैट इज फॉर एग्जांपल सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म। तो मैंने क्या किया सर, फॉर एवरी सिंगल टॉपिक आई प्रिपेयर एटलीस्ट 2-3 पेज का नोट्स। एंड हाउ डिड आई प्रिपेयर नोट्स? मैंने रैंडमली गूगल में अप्लाई किया सेक्युलरिज्म यूपीएससी, उसमें जितने सारे कोचिंग के नोट्स आ गए, आई जस्ट वेंट थ्रू इट ऊपर ऊपर से, और जो मेरे को लगा मुझे लगता है रेलेवेंट है उसको मैंने अपने नोट्स में उतार लिया। और वैसे ही मैंने सारे जितने सिंगल टॉपिक्स थे वैसे ही कर लिए। सिमिलरली फॉर हिस्ट्री सर व्हाट वी डिड, भी हम 4-5 जन का बैठे एक साथ एंशिएंट इंडिया में, और हमने 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, और हमने देखा कि कौन से थीम्स है जो कि बिल्कुल नहीं आए हैं, निग्लेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सर इसी वे में हमने पाला आर्किटेक्चर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन डिसाइफर कर लिया था कि लास्ट 10 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया, ये कहीं ना कहीं आएगा। तो उसके जितने भी थीम्स नहीं थे उसके हमने नोट्स बना लिए, दूसरे जो थीम्स बहुत ज्यादा रिपीटेड है उसके नोट्स बना लिए। वैसे एंशिएंट इंडिया के लिए आई डिड दिस। सिमिलरली मॉडर्न इंडिया के लिए व्हाट आई डिड, जितने भी जो भी हम न्यूज में रहते, दिस आई हैव सीन सर पर्सनली, कि लास्ट 12 महीने में अगर कुछ भी न्यूज में है मॉडर्न इंडिया के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्थ ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल मूवमेंट, रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये सब न्यूज में काफी आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी रेकरिंग टॉपिक्स थे, फॉर एग्जाम्पल ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट में कोलोनियल टाइम में क्या वो था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत एवरी डे वी आर सीइंग दैट डिफरेंट पॉलिटिशियंस और से ब्यूरोक्रेट्स एक्चुअली आर कमिंग अप एंड सेइंग कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो दीज थिंग्स आर बाउंड टू कम, जो न्यूज में है वो मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो दिस आई डिड। सिमिलरली व्हाट आई डिड अगेन मॉडर्न इंडिया के लिए, कि मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज निकाल लिया मार्केट से मॉडर्न इंडिया के ऊपर, और जो भी थीम के उसमें आंसर है उसको फाड़ लिया वो पेज, और वैसे उसको स्टेपल कर दिया सारा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट का आंसर है तो उसको फाड़ लिया, सिमिलरली क्विट इंडिया का आंसर है उसको फाड़ लिया, और उसका मेरा पूरा एक सिलेबस का अपना नोट्स बन गया रेडी। उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। एंड फाइनली सर ज्योग्राफी के लिए आई थिंक ज्योग्राफी इज ओवर एम्फसाइज्ड, वेयर ज्योग्राफी के नाम पे वो एनवायरमेंट पूछते हैं। मैंने ये नोटिस कर लिया है सर, GS1 और GS3 में वो ज्योग्राफी बोलते तो है, बट देन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट। तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रहता है कोर सर, वो जितना भी पढ़ लो आप अपने से आंसर करना पड़ेगा। सो रादर देन दैट व्हाट आई डिड, कि मैंने वही 10 साल के थीम्स निकाली है ज्योग्राफी में, आर्कटिक क्वेश्चन, अंटार्कटिक, या फिर लैंडस्लाइड्स हो गए, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो 10-15 ही थीम है, और उसके बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बना लिए। और वो आप अभी भी अगर खोल के देखोगे सर लास्ट 5 साल के, तो क्वेश्चन रिपीटेड ही है, वो सेम चीज ही उसको डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा रहा है।
कि तो वो उसके एक बार नोट्स आपके रेडी हो गए, तो ये 3 डायमेंशन के हो गए। सिर्फ एक लास्ट इसमें ये चीज है कि सर समबडी टोल्ड मी एंड आई थिंक एक्चुअली वर्क कि हिस्ट्री में एवरी आंसर ऑफ योर्स शुड हैव डेट्स। कुछ भी हो कि उसका पहला पैराग्राफ में आप डेट दिखा दो। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का क्वेश्चन है, यू राइट 1904 या 1905 देयर। सिमिलरली ट्राइबल मूवमेंट्स है, इफ यू आर लर्निंग दोस 10 मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल कुकी रिवोल्ट, दिस रिवोल्ट, देन इट्स बेटर कि आप उसके डेट्स याद कर लो। एंड सेकेंडली ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन कुछ भी हो वहां डायग्राम बना दो। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्योग्राफी में इंडो पैसिफिक का क्वेश्चन आया है तो आप इंडो पैसिफिक बना दो, कोरल रीफ्स का क्वेश्चन आया तो आप मैप बना के ये दिखा दो कि इंडिया में कहाँ कोरल रीफ्स मिल रहे हैं। तो ये दोनों चीज भी मैंने किया था उसमें एग्जाम में। Okay, fine. So again, I generally make a statement for regarding the previous year questions that UPSC has asked whatever it has to ask. So if you are at the situation कि इस टाइम पे कि क्या कहाँ से पढ़ा जाए, क्या कहाँ से नहीं पढ़ा जाए, you stick to the previous year questions. Especially those aspirants, those who are in the first or second attempt, और जो पहला मेंस दे रहे हैं, they are not well settled with the notes making and all. तो उनके लिए आई थिंक दिस एडवाइस ऑफ माइंड विल वर्क स्टिल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मतलब एक तो यही है कि सर राइटिंग को ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं हम बहुत बार। पीपल आर वेरी वरीड अबाउट कि हमने राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी सर, कंटेंट नहीं होगा तो आप कुछ भी राइटिंग लिखो, दैट वोंट फेच यू मार्क्स। एक बार योर कंटेंट इज रेडी सर, अगर राइटिंग अच्छा भी नहीं आ रहा आपका स्किल, सो यू विल बी एबल टू एक्चुअली मेंटेन, यू नो, मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास वो कंटेंट है। तो फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड इज राइटिंग। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट कम्स आफ्टर योर कंटेंट बिल्डिंग। Fine. So let's move to the GS paper 2. The recent trends has been there that they are asking some comparison. Somewhere they will ask with the Europe, sometimes USA, like very basic features like democracy, secularism or something, but they compare. And in the market, we will not find these kind of notes. Okay, how to tackle such questions? सर अगेन, इफ किसी का, इफ एनी इंडिविजुअल्स नोट्स आर रेडी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, देन वो कंपैरिजन वाला चीज भी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट इज यूजुअली सीन कि दे विल आस्क समथिंग व्हिच इज कंट्रास्टिंग। सो इफ यू आर एक्चुअली, यू नो, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत बार ये हो सकता है कि यू कैन एक्चुअली टेक अ वाइल्ड गेस कि वहां पे थोड़ा सा इसके डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, वी आर वेरी सिमिलर टू से यूके काइंड ऑफ मॉडल, सो इफ दे आर आस्किंग इंडिया यूएस, so you can actually, you know, write the opposite there. So you have to actually, because iska notes making is, we cannot make notes for this, we cannot predict when questions क्या आएंगे। Exactly. तो वहां पे इंटेलिजेंट गेस करके यही करना चाहिए कि जहां भी आपको लग रहा है कि एक तो उसके करंट अफेयर्स याद कर लो आप, ट्राई रिमेंबरिंग व्हाट हैड हैपेंड इन यूएस, फॉर एग्जांपल इफ दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली कंपेयर इंडिया एंड यूएस, कि वो क्यों पूछा होगा, व्हाट कैन बी द ट्रिगर। एंड सिमिलरली वहां पे जो भी आएगा डेफिनेटली उसका आंसर आ जाएगा कि इसका ये है तो उसका थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा मॉडल। तो वो या फिर फॉर एग्जांपल उस समय इलेक्शन हो रहा था यूएस का, तो इसलिए दे हैड एक्चुअली रेफर टू समथिंग, और वहां पे सेनेट का क्वेश्चन आ गया था यूएस का। इसमें यूके में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर, तो क्योंकि वो आया था क्योंकि यूके का ब्रेक्सिट हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रहा था वहां पे। सो इट इज ऑलवेज देयर इन द करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स वो मेन 65 के पॉलिटी देखेंगे, तो वेरेवर सम अदर कंट्री इज मेंशन्ड, तो दैट मींस उसका क्वेश्चन आ सकता है उसके इर्द गिर्द। तो मेरा फोकस ये रहता था कि वहां पे इंटेलिजेंट गेस कर लो। एंड सेकंड यही है कि सर अगर नहीं आता है तो लीव दैट फॉर लास्ट 20 मिनट्स, क्योंकि अगर वहां पे आप पहला अपना 2 आवर्स दोगे तो वो टाइम वेस्ट ही होगा, आप उसको सिखा रहे हो एग्जामिनर को, उसको भी पता है कि आपको नहीं आ रहा है ढंग से। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप उसको 2 या 4 मिनट दो और खत्म करके आ जाओ वहां से। सो इट्स लाइक आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, इन क्वेश्चंस में ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो एनी मोर लाइक सिंस यू वर फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, so what have I observed that those people who are good with the optionals, for example public administration GS paper 2, PSIR GS paper 2, someone economics background GS paper 3, they are unable to score good, but fortunately your score was good in both the terms. So how you manage and how you differentiate between optional type of answers and the GS type of answers? सर बेसिकली द थिंग इज कि जब वी आर अटेम्प्टिंग एन ऑप्शनल पेपर, तो बहुत बार हमें क्या होता है कि वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट थियरीज, डिफरेंट थिंकर्स, वी आर ट्राइंग टू पुट दोज इनटू पर्सपेक्टिव, बट एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे वी हैव टू थिंक लाइक अ जनरलिस्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस आईपीएस, आप कुछ भी हो, सो ऑब्वियसली क्वेश्चन वहां पे जब आपको आ रहे हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई योर ऑप्शनल नॉलेज देयर, व्हिच वेरी थियोरेटिकल। तो मेरा बेस यही था कि आई वाज नेवर थिंकिंग अबाउट कि मैंने क्या ऑप्शन में पढ़ा है, मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन एज इट इज, कि एक क्वेश्चन आया है एंड हाउ आई एम अटेम्प्टिंग लाइक अ जीएस पेपर। तो इसलिए एक तो ये था। दूसरा ये था कि सर
यूजुअली क्या हो जाता है कि ऑप्शनल में वी गो इनटू वेरी डीप, whereas जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में यू डोंट हैव टू गो इनटू मतलब पूरा डेप्थ में जाके उसको एनालिसिस नहीं करना है, यू हैव टू राइट एन नंबर ऑफ पॉइंट्स देयर and go into different perspective, positive, negative, way forward, committees, all these things are really important there. तो एक ये भी चेंज हो जाता है कि जीएस से और आपका ऑप्शनल से, बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसे टाइप का है 4 पेजेस का आंसर रहता है, 3 पेज का आंसर रहता है, वेरस यहाँ पे इतना वो नहीं आता है। तो इसलिए माइंडसेट कभी ये था ही नहीं कि जीएस में आपको मतलब ऑप्शन का कुछ लेके आना है। यस, बट नॉलेज डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि नॉलेज में ये क्या हो जाता है कि मेनी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, कमिटीज, दीज आर ऑल कवर्ड। तो एक ही हो जाता है। एंड जीएस 2 का इफ आई टेल यू, तो अगेन पॉलिटी में आर्टिकल्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, मतलब ये आपके आना ही आना है। क्वेश्चन कुछ भी आए, आप उसका आर्टिकल लिखो, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो उसको कहीं नहीं हो पा रहा है तो कंक्लूजन में लिख दो, पर उसको लिख दो, बिकॉज यू शो एग्जामिनर यू नो। एंड सिमिलरली फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन कीवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल नेबरहुड फर्स्ट हो गया, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लुएंस, जितने भी कीवर्ड्स है आईआर के, वहां पे आप सब घुसेड़ दो एक ही जगह में। और मैंने क्या किया था सर फॉर आईआर, अगेन आई मेड एक्सटेंसिव नोट्स, एक तो बायलैटरली, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, जितने भी आते हैं, जितने मेजर है। सेकंड रीजनली, इंडिया यूरोप, इंडिया अफ्रीका, इंडिया लैटिन अमेरिका एंड इंडिया आसियान। जैसे फॉर लास्ट ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था इंडिया अफ्रीका के ऊपर। सो व्हेन वी हैव दीस टेम्पलेट्स रेडी, एक तो ये हो गया कि बायलैटरली, सेकंड हो गया मल्टीलैटरली, और थर्ड हो गया सर कि जितने भी आपके की टर्म्स है, फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव हो गया, जितने भी इंडिया का कोई भी कुछ भी नया, इंडिया इज टेकिंग न्यू इनिशिएटिव, सो यू मस्ट हैव योर नोट्स रेडी फॉर दैट। एंड फाइनली फोर्थ वाला यही हो गया कि जितने भी नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, वो सारे चीज आ जाएंगे, वेदर इट्स इन द न्यूज और नॉट, वो आ सकते हैं। तो मेरा एससीओ का सर नोट्स लास्ट ईयर का था, एंड इट केम इन हैंडी दिस ईयर। आई स्टिल रिमेंबर, हम जब आईआर का वापस दे के आ रहे थे, तो एसओएमपी में सर ने कहा था कि अफगानिस्तान नहीं आया इस ईयर, अगले साल आएगा, क्योंकि न्यूज में इस साल था, आएगा अगले साल। तो वही चीज है कि इफ योर नोट्स आर रेडी, ऑल दीज थिंग्स, तो सर वो 3 क्या मैं बोलता हूँ नेक्स्ट 5 साल के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। फाइन। सो बेसिकली मोटा मोटा हमने जीएस पेपर 2 भी कवर कर लिया है कि मेंस वालों को कहाँ पे फोकस करना चाहिए। नाउ मूविंग टू जीएस पेपर 3, सिंस लास्ट 3 years this subject is being butchered. Again you have scored a quite good marks, I will say. Okay, so अभी जो डिलेमा है, बट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द एस्पायरेंट्स, आई विल पुट इट स्ट्रेट आउट टू यू कि फैक्ट्स डेटा भर भर के डालने हैं सर या नहीं डालने। दे जनरली आस्क मी दिस, हाउ टू हैंडल दिस डिलेमा, और फैक्ट्स डेटा डालने हैं तो उसका सोर्स क्या होना चाहिए। सर आई टेल यू दिस, मैं जब जीएस 3 पेपर दे के आया था, इवन बिफोर द पेपर आई वाज वेरी श्योर कि पेपर अच्छा जाने वाला है, और पेपर देने के बाद भी आई फाउंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं अच्छे से अटेम्प्ट किए, बिकॉज क्वेश्चंस बाउंसर थे, बट आई वाज वेरी श्योर कि पेपर अच्छा गया। एंड दैट वाज बिकॉज यही चीज मैंने किया। आप देखो सर पेपर में ना स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सेकेंडरी है। फर्स्ट जीएस 3 का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर इकोनॉमिक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्पेशली एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। वो एग्रीकल्चर में, सर एम आई ऑडिबल? yes 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 हाँ, yeah. yes So yes sir, you're आप audible. अगर so if you see in the agriculture part there are at least 25 keywords है, जिसमें हम पूरे निगलेक्ट कर देते हैं। हम खाली पढ़ के जाते हैं कि एमएसपी का क्या होने वाला है, या कुछ भी बहुत ऊपर से एपीएमसी वगैरह वगैरह। बट सिलेबस में सर इट इज क्लियरली मेंशन्ड, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारे कीवर्ड्स है सर। एंड वी एज एन एस्पिरेंट, आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल, नो वन हैज डन दैट। वो हम लोग कभी भी इसके स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाते एवरी कंपोनेंट के। सो व्हाट आई हैड डन वाज दैट जितने भी कीवर्ड्स है स्पेशली जीएस 3 में, उन सब के नोट्स बनाए थे। स्टोरेज तक का भी मेरे पास नोट्स था सर, ट्रांसपोर्ट तक का भी अलग से नोट्स था, मार्केटिंग, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, एमएसपी, जितने भी चीज है। तो एक तो ये हो गया कि सर इसका नोट्स रेडी था, तो क्वेश्चन कुछ भी आएंगे यू विल हैव एवरीथिंग रेडी, यू विल हैव स्टैटिस्टिक्स रेडी, यू, बिकॉज वहां पे आपने जो नोट्स बनाए हैं वो सब होने चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नोट्स मेकिंग, कि फॉर एग्जांपल अगर स्टोरेज का नोट्स था, तो मैंने क्या किया, एक तो स्टोरेज में पहले तो स्टैटिस्टिक्स ढूंढ लिया कि लास्ट 5 साल के अच्छे से स्टैटिस्टिक्स है, कि अशोक दालवाई कमेटी का एक रिपोर्ट था कि हम एक साल में जितना पैसा वेस्ट करते हैं उतना खाली इन्वेस्टमेंट कर देंगे स्टोरेज में तो वो जीरो हो जाएगा हर साल, 90,000 करोड़ के आसपास। तो सिमिलरली वो स्टैटिस्टिक्स रेडी था। सेकंड, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, अगेन हर टॉपिक के एक स्टैटिक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज का स्टैटिक पार्ट था टाइप ऑफ स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज, ऊपर का स्टोरेज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज। थर्ड वाज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग। फोर्थ वाज सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके, और फिफ्थ वाज कि कोई कमेटी है तो उसने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो यही चीज मैंने हर टॉपिक की थी।
फूड सिक्योरिटी का भी स्टैटिक पार्ट क्या हो गया कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी इंडिया, और दूसरा का इंडिया का जो एवोल्यूशन है फूड सिक्योरिटी का, जैसे बहुत एक अच्छा कोड बोलते हैं कि वी हैव अटेन्ड फूड सिक्योरिटी एट अ नेशनल लेवल बट वी हैव नॉट अटेन्ड फूड सिक्योरिटी एट अ हाउस होल्ड लेवल। तो इस टाइप के जो स्टैटिक पार्ट होते हैं ये पूरा प्रॉपर रेडी हो गया था। और तीसरा इसका फिर वही चीज कि व्हाट इज द इशू विद फूड सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। हर चीज का सर कॉम्प्रिहेंसिवली GS3 का ऐसे ही मैंने किया था। सिमिलरली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आपका जितना भी है बॉर्डर का क्वेश्चन सर एवरी ईयर इट इज रिपीटेड, एंड रिपीटेड मतलब 15 मार्कर में रिपीट होते हैं। तो उसमें आपको एकदम अच्छे से नोट्स बनाने हैं कि हर एक चीज के, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। सिमिलरली फॉर साइबर सिक्योरिटी अगेन मनी लॉन्ड्रिंग जो कॉन्सेप्ट है वो फिर भी निगलेक्टेड है एवरी टाइम। आई हैव नेवर स्टडीड इन द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, बट लास्ट 2 अटेम्प्ट में बिकॉज आई वाज डूइंग दिस तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बना लिया था। एंड लास्ट ईयर सीधा सीधा क्वेश्चन आया सर, और जो निगलेक्टेड टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं सर। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पेपर में आते हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्टोरेज प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि वो निगलेक्टेड टॉपिक्स है सो दे डोंट गो डीप। तो इसीलिए ये सब चीज के जो मैंने नोट्स बना लिए थे इट केम इन हैंडी लेटर ऑन सारी चीजें के। तो ये हो गया। एंड तीसरा एज आई वाज सेइंग कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो व्हेन आई वाज मेकिंग डायग्राम मैं इतना एक्सटेंसिव डायग्राम बना लिया था सर कि एक लास्ट ईयर बैड बैंक आया था, तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या था मैंने उसके भी डायग्राम बना लिए थे बढ़िया से कि बैड बैंक के लिए हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, एंड व्हाट इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट। सिमिलरली ग्रीन हाइड्रोजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर, तो ग्रीन हाइड्रोजन को भी मैंने एक नोट्स डायग्राम बनाया था कि हाउ इट इज बीइंग जनरेटेड, कि पहले रेन्यूएबल एनर्जी से वो बनता है, देन अगेन वी कम हियर ग्रीन हाइड्रोजन से ये बनता है, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट नोड्स। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का डायग्राम बना इससे मेरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हुआ था सर कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद आप क्वेश्चन कुछ भी दे दो आई विल बी एबल टू आंसर। तो ये था कि डायग्राम, और तीसरा जो आपने कहा स्टैटिस्टिक वाला पार्ट। ठीक है लोग, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं अगेन जीएस पेपर 4 लाइन वाइज। अच्छा, एथिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा कि मतलब पहले हमें केस स्टडी सॉल्व करनी है या अपने हमें आंसर्स लिखने हैं जो 13 क्वेश्चंस हमारे डिस्पोजल हैं। सेकंड, हाउ टू मेक केस स्टडी एग्जांपल ओरिएंटेड, और या जैसे हम बोलते हैं कि केस स्टडी में हम बोलते हैं कि एग्जांपल जरूरी है, आप एथिकल वर्ड्स डालना जरूरी है आपके आंसर में। इट शुड नॉट लुक लाइक कि राम कथा लिख दिया है या जीएस टाइप का आंसर लिख दिया है, इट शुड लुक लाइक एथिकल। तो उसको ओरिएंटेशन देने के लिए क्या किया है? सर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले 4 अटेम्प्ट में केस स्टडी से चालू किया था, एंड देन आई यूज्ड टू कम टू थ्योरी पार्ट। तो लास्ट ईयर मैंने रियलाइज किया कि सर आई यूज्ड टू टेक लाइक 2 आवर्स समटाइम्स 2 और 5 मिनट्स केस स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, बचता था लास्ट में हार्डली 50-55 मिनट्स, 13 क्वेश्चन करना कंप्लीट करना पड़ता था। तो आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दैट। समटाइम्स हमको पता भी नहीं है सर कि हाउ मच दे आर एक्चुअली मार्किंग फॉर केस स्टडी, हाउ मच दे आर एक्चुअली गिविंग वेटेज टू थियरी, वी आर जस्ट थिंकिंग कि केस स्टडी ज्यादा मार्क्स आएगा। बट इस साल मैंने क्या किया था, आई स्टार्टेड विद थियरी एंड आई फिनिश्ड एग्जैक्टली इन 1 hour 30 minutes, और फिर सर 1.5 घंटे एग्जैक्ट केस स्टडी को दिया। आइडियली यही होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इफ यू सी 130 मार्क्स इज डिवोटेड टू थियरी। तो ये मैं लास्ट ईयर निगलेक्ट कर दिया था। तो अभी इफ समबडी आस्क मी कि क्या करना चाहिए, तो आई वुड डेफिनेटली टेल देम कि आप पहले थियरी करो और फिर केस स्टडी करो। उससे क्या हो जाएगा, एक तो क्या है कि आप श्योर हो कि आपके 10 मार्कर वाले सारे अच्छे चले गए, एंड केस स्टडी क्या है कि आंख बंद करके भी जल्दी जल्दी खाली आपको केस पढ़ना है, उसके बाद तो आप सोल्यूशन कुछ भी दे दोगे। और आजकल की जो ट्रेंड भी हो गया सर, दे आर आस्किंग ओनली 1 क्वेश्चन इन केस स्टडी। तो उससे क्या हो गया, एक बार आप पूरा राम कथा पढ़ लिए, 10 मिनट खाली मन का लिख दो वहां पे, क्योंकि फिर आपको यू डोंट हैव टू आंसर मल्टीपल क्वेश्चंस देयर। तो इसीलिए ये भी एक हो जाता है। तो इसीलिए माय सजेशन वुड बी कि आप केस स्टडी बाद में करो। सेकेंडली सर, एग्जांपल के लिए व्हाट वी डिड, अगेन आई टोल्ड यू कि माय रूममेट प्रखर, इवन ही वाज देयर विद मी, तो इवन ही वाज गिविंग द एथिक्स। तो हमने 3 जन इकट्ठे बैठे फॉर 2 days स्ट्रेट। व्हाट वी डिड, सारे टॉपिक्स के एक एक डायरी बनाए, और एक एक टॉपिक में एक एक नोट्स, एक एक वो लिख दिया ऊपर हेडिंग, इंटेग्रिटी या फिर एम्पैथी। और फिर सर जितने भी, अब 3 जन है तो 3 दिमाग काम कर रहा है। सो वी थॉट कि भाई एग्जाम्पल बोलो। तो हमने एग्जाम्पल्स को 3 में डिवाइड कर दिया, एक माइथोलॉजी, एक मॉडर्न इंडिया, एक अभी प्रेजेंट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इंटेग्रिटी था सर, तो माइथोलॉजी में इंटेग्रिटी था कि अर्जुन, लॉर्ड अर्जुन, व्हाट ही डिड कि दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इवनिंग के बाद दे नेवर यूज्ड टू फाइट द वॉर, बट कौरव एक्चुअली वायलेटेड द रूल। वो इवनिंग के बाद भी दे गिव सरप्राइजली अटैक द पांडवास, बट अर्जुन डिड नॉट डू दैट। तो वो इंटेग्रिटी दिखाया। सिमिलरली मॉडर्न इंडिया में एम विश्वेश्वरैया सर, व्हाट ही डिड, ही हैड 2 कैंडल्स। तो उन्होंने घर में पर्सनल कैंडल, जब प्रोफेशनली घर में भी काम करते थे तो ही यूज्ड टू लाइट 1 कैंडल और उसको बुझा के देन ही यूज्ड टू लाइट द अदर कैंडल फॉर पर्सनल यूज। और सिमिलरली फॉर मॉडर्न इंडिया, सॉरी प्रेजेंटली, ऐसे सर हर एक थीम के वी मेड लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वी गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। उससे देन वी शॉर्टलिस्टेड 2-3 जो हमें लग रहे हैं काम के हैं। तो एक तो मैंने ये किया सर फॉर एग्जांपल्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आपको देने ही है। एंड thirdly what I did sir for case study, again as you had said कि how to make it example oriented,
सर मैंने क्या किया, मैंने पूरे केस स्टडी को एटलीस्ट 8 से 10 में डिवाइड कर दिया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको किस टाइप के केस स्टडी हो सकते हैं। एक, आप गवर्नमेंट में हो, वहाँ करप्शन हो रहा है। दूसरा, आप गवर्नमेंट में हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में, आप डीएम हो, डिजास्टर हो गया, आप कैसे सॉल्व करोगे। तीसरा सर, आप गवर्नमेंट में हो और वहां पे आपको सोशल चेंज लेके आनी है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज का इशू है, डाउरी का इशू है, वो। फोर्थ वाला एग्जांपल हो जाएगा, यू आर इन द प्राइवेट सेक्टर और वहां पे करप्शन हो रहा है, सो व्हाट वुड बी योर एक्शन। तो सिमिलरली फिर एक हो गया कि सर यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट और प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव में जा रहे हो आप। तो ऐसे कर करके आई मेड 8 to 10 टेम्पलेट्स, और एवरी केस जो भी टेम्पलेट है सर, उसके अंदर जितना भी मेरे को वैल्यू एडिशन आता है, एक वैल्यू एडिशन हो गया कोर्ट, फॉर एग्जांपल करप्शन में आता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सेकंड, उस थीम के अंदर जितने भी फिलोसफिकल वो आ सकते हैं, कांत के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया, वर्चू एथिक्स हो गया, जितने भी उसमें आ सकते हैं, जितने भी हमको ज्ञान पेलने। एंड थर्डली सर, उसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसे प्रोटेस्ट का आ गया, तो प्रोटेस्ट या एंटी एंक्रोचमेंट में ओल्गा टेलिस का केस था कि सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि रिहैबिलिटेशन करो, डिस्कशन करो, फिर करो। तो जितने भी मुझे वैल्यू एडिशन आते हैं इस थीम्स के अंदर, मैं सब उसको वहां पे रख दिया था सर, सो दैट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम आई जस्ट हैव अ ग्लैंस, तो ताकि इफ अ क्वेश्चन कम तो मुझे पता है कि मुझे कैसे उसको जस्टिफाई करना है, किस टाइप के आंसर्स देने हैं। तो ताकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो पूरा सेट है, बिकॉज आपके पास कोर्ट्स है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, तो वो आपको सोचना ही नहीं है। तो ये चीज काफी हेल्प किया। एंड फाइनली सर, कीवर्ड्स, मैंने रैंडमली कीवर्ड्स बना दिए, क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट हूँ, तो बहुत कीवर्ड्स आते हैं, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, सिटीजन कनेक्ट, ये वो कर करके 200 से ऊपर कीवर्ड्स थे सर। और वो खाली मैंने ऐसे बना दिए ताकि जब भी मेरे पास रहे, तो राम राज्य हो गया, गांधी जी का कॉन्सेप्ट, या फिर कंपैशनेट कैपिटलिज्म, जो भी है आपको वहां डालने हैं। और वो जब मैं एग्जाम में लिख रहा था, तो ऑटोमेटिकली दो थिंग्स आर कमिंग, क्योंकि वो एग्जांपल्स भी आ जा रहे थे केस स्टडीज में, कीवर्ड्स भी केस स्टडी में आ जा रहे थे, और थीम्स तो मेरे ऑलरेडी रेडी थे, और काफी सारे थीम्स वहां पे ओवरलैप हुए एग्जाम में। तो इफ समबडी वांट्स टू गो थ्रू द थीम्स आल्सो, लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, और जो थीम आ रहे उसमें से निकाल लो। Fine, fine, fine. So it was quite, I will say, insightful from your side कि मतलब examples हम बना कैसे रहे हैं basically. Okay, so let's move to the, I will say, I generally say that your girlfriend and wife, like options is your girlfriend or wife in your UPSC preparation. So let's move towards the public administration. So the thing is that since I myself is from public administration background only, so I will put up only 3-4 specific questions where people are struggling these days. The new syllabus that has come out in 2017, I guess, that has somehow made aspirants think which book to follow or how to cover that syllabus, the hidden syllabus, that new kind of questions that are coming or new findings, like UPSC कोई नया जनरल आया, उसका हेडिंग के ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ लिया है। अब now these things you will not find in any book or say any well established book. So how to deal with the new syllabus basically for the time being? सर अगेन, न्यू सिलेबस का जो इशू है पवार 1 में ही आता है, क्योंकि पवार 2 तो चलो बहुत ही डायनामिक हो गया। तो पवार 1 में भी सर व्हाट आई हैव डन कि मैंने ना एक आर्ट ऑफ राइटिंग फॉलो करता हूँ सर, दैट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर एंड इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स। दैट इज, जो कि मैंने पूरा आंसर को, एनी आंसर हो उसको 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। एक जो भी रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा ऑफ 2 लाइंस, और वो इंट्रोडक्शन ऐसा रहेगा कि वो क्वेश्चन के कीवर्ड्स उसमें आ जाए, नथिंग एल्स। बस खाली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर कुछ आया है कि कंटेंट मोटिवेशन पे आया है, तो I would write कि there are different types of motivation theories, content theory is one of them, और content theory is very popular. Second paragraph में sir I would just write the basics. Basic मतलब whatever is the keyword there उसका basic कर लो। For example question अगर NPM में है, कुछ भी question हो, quote हो, so the basic thing is NPM right now, तो मैं NPM का एक पैराग्राफ उसमें डिवोट करूंगा। सिमिलरली क्वेश्चन और कुछ भी हो, गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया तो गुड गवर्नेंस के ऊपर लिख दिया, तो ये मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ जब मैं आ रहा हूँ तो तब मेरे को केटर करना है बॉडी, और तब से तब तक तो मेरे को पता है कि आधा चीज तो मेरे को आता ही नहीं है, तो अगर नहीं आता है तो कुछ भी लिख दो, उसको जैसे भी कर दो। और अगर आता है तो उसको ऐसे लिख दो कि फॉर एग्जांपल उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो 4th और 5th पैराग्राफ बन जाएंगे। एंड देन कम्स माय लास्ट पैराग्राफ व्हिच विल केटर टू द कमेंट देयर, कि वो कमेंट है, डिस्कस है कि एक्सप्लेन है, जो भी वो रहेगा उसके हिसाब से मेरा लास्ट पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सर अगर क्वेश्चन में 2 कीवर्ड है तो बहुत बेस्ट हो गया, क्योंकि देन आई हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस 2 थिंग्स। सो मेरा जो बेसिक पार्ट रहता है आफ्टर इंट्रोडक्शन, वो मैं दोनों को डिफरेंस कर दूंगा पहले, कि फॉर क्वेश्चन अगर आ गया कि गुड गवर्नेंस इज नाउ बीइंग चेंज्ड इनटू गुड गवर्नेंस 2.0 एक्सप्लेन, तो आई नो राइट नाउ कि देयर आर 2 कीवर्ड्स हियर। अब वो तो मुझे अपने से बनाने हैं, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस 2.0, तो वो मेरा बेसिक आ जाएगा।
सो दिस मतलब ये एक वे ऑफ राइटिंग है जिससे एटलीस्ट आप बेसिक लिख दोगे तो आपको एक बेसिक मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है उस चीज का, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट, से दैट्स अ 10 मार्कर। तो इस उसके लिए वी कैन एक्चुअली फॉलो दिस टेम्पलेट, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ठीक है, बेसिक ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, बॉडी चलो आपको आते ही नहीं है तो हम कर भी नहीं सकते कुछ। ओके, अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पेपर, इसमें बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, सिंस पहली बात तो जल्दी कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले भी नहीं रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स, दोज हु हैव स्टिक टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे नो इट। Okay, so how to link paper one and paper two? Okay, this is the issue. But now हो क्या रहा है, लिंक करने के चक्कर में एस्पायरेंट्स ओवरडू कर जा रहे हैं। हाउ टू अवॉइड दैट, मीट राइट काइंड ऑफ बैलेंस कैसे अटेन करना है पेपर वन एंड पेपर टू व्हाइल राइटिंग पेपर वन? एक तो सर बहुत बड़ा मिथ है, और जो मेरे मन में भी था ये पहला 3 में, कि हम 2 चीज करते हैं सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा। एक कि एक थिंकर के आंसर में 4-5 थिंकर को घुसेड़ो। फॉर एग्जांपल यू राइटिंग अ टेलर्स थ्योरी, तो यू हैव टू बी हैव दिस माइंडसेट कि 3-4 थिंकर्स को और लेके आ जाओ कनेक्ट करने के लिए। दूसरा ये कि पेपर 2 का हम कितना वहां पे डाल दें एग्जांपल्स वगैरह। तो सर दोनों मेरे हिसाब से आर ओके, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लिंक टू अदर थिंकर्स एंड एग्जांपल्स, बट दीज आर ऑल सेकेंडरी। आर प्राइमरी रोल इज टू आंसर द क्वेश्चन। बहुत बार ये हो जाता है, एंड एज अ मेंटर सर आप देखना कोई भी आप आंसर लिखोगे, सो द पर्सन वुड हैव एक्चुअली गिवन 3-4 थिंकर्स देयर, लिंक कर दिया होगा, पेपर 2 का भी एग्जांपल दे दिया होगा, पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है सर, ही हैज नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, बट वी हैव डन एवरीथिंग एल्स। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर पेपर 1 में, कि वी बिकॉज ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, कि वैल्यू एडिशन करना है, ये करना है, लिंक करना है, वी डोंट आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉट एवर इज द क्वेश्चन, वो उसका अच्छा से आंसर कर दो, कि एनपीए इज now a what you call different version of Taylor, neo-Taylorism. So we have to show that how NPM is a different version of Taylor or a new version of Taylor. But उसके जगह हम क्या करेंगे, we are defining NPM, we are defining Taylor, और उसके जगह हम न्यू टेलरिज्म का थोड़ा फीचर्स लिख देंगे, but we are not answering the question कि how it is different from Taylor's, yeah, how it is a reinventing thing. तो वही मेन फोकस होना चाहिए सर। एंड सेकेंडली अगेन, अगर जब हम ये कर देंगे तो आप फोकस जब हम लिख रहे होंगे, इट्स totally all right if you do not give an example of paper 2, it's totally all right if you're not linking other thinkers, अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर कर दे रहे हो, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी। एक तो उसका इसलिए वी आर ओवर डूइंग इट बिकॉज मेनी टाइम्स वहां रेलेवेंट नहीं है, बट हम डाल दे रहे हैं बिकॉज वी थिंक कि वो डालना है, तो वो नहीं करना है। एंड सेकेंडली वही चीज अगर आपको लग भी रहा है तो इनिशियली या लास्ट पैराग्राफ में वो एग्जांपल के साथ एंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेलर का थियरी है या मेयो का थियरी है, तो एंड में यू कैन राइट कि हाउ इट इज सीन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मोटिवेट्स इट्स एम्प्लॉइज। इस टाइप के कुछ भी लिंक करने के लिए एग्जांपल्स आर द बेस्ट, अगर आप एंड में लिखो उसको, क्योंकि आप बीच में लिख के उसको फिर आप वैसा कर दोगे कि आप उसका लिंक टूट जाएगा जो आप आंसर कर रहे हो। ओके फाइन, सो नाउ आई विल आस्क सोर्सेस फॉर द पेपर वन। सर अगेन देयर इज नो वन सोर्स, मतलब मैं इतने सोर्स पढ़ लिया इतने साल में और मुझे लगता है सारे सोर्स बेकार है। मतलब मैं मोहित भट्टाचार्य पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए 2-3 बार, फिर मुझे लगता है पढ़ना ही नहीं था ये बुक। सिमिलरली प्रसाद एम प्रसाद के इतने बार पढ़ लिए, मुझे लगता है ठीक है, इट इज गिविंग मी राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, पर इतना भी नहीं करना था कि मैं उसको बैठ के 10 बार पढ़ लिया। तो अगेन वन हैज टू बी रियली स्मार्ट बाय डूइंग ऑल दिस, अल्टीमेटली योर नोट शुड बी रेडी। तो उसके लिए आपके पास क्या है कि एज एन, अगर सबसे मेन चीज पवार 1 में ये है कि अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी याद मत करो, यू विल बी एबल टू डू वेल इन दैट पेपर। अंडरस्टैंडिंग मतलब इफ आई आस्क समबडी राइट नाउ टीपीए, एनपीए, एनपीएम, एनपीजी और गुड गवर्नेंस, ये 6 का मेरे को डिफरेंस बता, और अगर वो बता दे रहा है then you have the understanding. Similarly if I ask a person, ये सब neglected part है, modern, post modern, जितने भी की टर्म्स है, पीटर प्रिंसिपल, पार्किंसन लॉ, ट्रेड इनकैपेसिटी, ये जितने भी की टर्म्स है, बिकॉज ये जल्दी से मिलते नहीं है एंड इट इज रेपिटेडली बीइंग आस्क्ड इन द पेपर। तो इसीलिए एक तो ये सब के अगर नहीं मिल रहे तो आप गूगल कर लो। पेपर्स में फॉर एग्जांपल सर मैं बता सकता, एक तो प्रसाद एंड प्रसाद इज गुड फॉर थिंकर्स। सेकेंडली आई फाउंड अरिबम आल्सो वेरी गुड बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, जो राइटिंग स्किल लूसिड बेसिकली, हाँ लूसिड है, तो इसलिए वो इट्स दैट इज आल्सो गुड। मोहित भट्टाचार्य पर्सनली आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबॉडी कि आप मत करो। तीसरा सर सम ऑफ द कोचिंग नोट्स आर आल्सो रियली गुड, तो इफ आई कैन टेक देयर नेम वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो श्योर यू कैन टेक देयर हाँ, नेम, नो इश्यूज एट तो ऑल। एक तो क्या कि बाजीराव में राजेश सर के वो भी बहुत अच्छा से नोट्स पूरा दिखाए हुए, एंड आई थिंक पर्सनली सर लुकमान सर नोट्स पेपर 1 में मतलब वो अनपैरेलल्ड है। वो हर एक थीम्स के कीवर्ड्स के इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं कि इफ समबडी इज स्टार्टिंग आल्सो आई वुड जस्ट रेकमेंड कि मार्केट से लुकमान सर के प्रिंटेड नोट्स उठा लो और उसको पढ़ लो बढ़िया से, कोई और बुक का जरूरत ही नहीं है सर फॉर पेपर 1।
मतलब इट इज सो वेल रिटन द नोट्स, तो वो पूरे अच्छे से हो जाएगा. तो आई रेफर दैट ओनली फॉर लास्ट 2 अटेम्प्ट, और मैंने सारे सोर्स बंद कर दिए फिर, और तभी सबसे अच्छे मार्क्स आए. तो वही चीज हो गया कि लुकमान सर के नोट्स लो उसमें, एंड दैट इज हाउ आई लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डायग्राम्स आल्सो फ्रॉम लुकमान सर मॉडल आंसर्स. क्योंकि सर यूजुअली ये होता है कि कोई भी पेपर, कोई भी कोचिंग वाले क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर नहीं देते जल्दी से, मॉडल आंसर्स नहीं देते ऑप्शनल के. तो वो लुकमान सर का मॉडल आंसर मिल जाता है, तो वो एक है. तो इसीलिए सर अगेन वही सेम थिंग जो मैंने ये सब चीजें कहा, आई थिंक दिस वुड बी इनफ. Okay, fine. Or paper 2, since it is a very dynamic paper, how to approach the same for the public administration? एक तो सर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ लिस्ट, एक्चुअली कोई है नहीं ज्यादा, बट इफ समबडी इज हियरिंग आल्सो, तो ये सारे जो लिस्ट है No, इसके no, we आपके, will give it down, we will put on YouTube. So Yes. don't worry, it So- will reach एग्जैक्टली. तो to the सर target एक यही है audience. कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और ये सबके आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए. आई विल गिव द टॉपिक्स लिस्ट. एक एनजीओ, दूसरा सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं. बेटर इंडिया में हर साल के सिविल सर्वेंट्स आते हैं, सो यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10-15 सिविल सर्वेंट्स और उनके काम. थर्डली सोशल ऑडिट के एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल उड़ीसा मॉडल, बलांगीर मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल, इस टाइप के. देन सिटीजन चार्टर, उसके भी 4-5 एग्जांपल, यूके के एग्जांपल, इंडिया के एग्जांपल. अर्बन में बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, इंडोर में आपके गार्बेज प्लान का है पूरा, तो वही चीज. सिमिलरली फॉर पंचायती राज यू शुड हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक छवि रजावत मैम का है सोडा विलेज का, आरती देवी मैम का है धुमका पाड़ा का. तो ये सब देयर वर्क. देन अगेन करप्शन में भी बहुत सारे एग्जांपल होने चाहिए. 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, जितने भी आपके स्कैम है, बिहार में अभी स्कैम हुआ, झारखंड में जो रिक्रूटमेंट स्कैम है वो. सिमिलरली पॉलिसीज में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स और बहुत सारे नेगेटिव्स पॉलिसी, डिफरेंट वेज हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन फील्ड. कि स्वच्छ भारत अभियान अच्छा चल रहा है तो सम उनके काफी सारे स्टैटिस्टिक्स, या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो देयर इश्यूज. देन एसएचजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसएचजी के भी सारे जितने भी स्टेट्स है, उड़ीसा का मिशन शक्ति हो गया, बिहार हो गया, जीविका मॉडल, जितने भी मॉडल, एटलीस्ट 5-6 मॉडल के अच्छे एग्जांपल्स. देन MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगेन इसके भी सारे एग्जांपल्स जो इंडिया के लेवल में चल रहे हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे यूज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश का स्मार्ट गॉव कैसे MIS यूज कर रहे हैं. PPPs के बहुत सारे एग्जांपल्स, जितने भी ऑन फील्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देन RTI के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड मीडियाज के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल्स कि हाउ दे प्लेइंग. ये सारे, इनफैक्ट दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी 4-5 टॉपिक्स हो सकते हैं, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज बिकॉज पवेट 2 पेपर में आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं, तो ये सबके आपके पास एग्जांपल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर्स अच्छे हो जाएंगे. तो एक तो यही कि ये सारे टॉपिक्स के अच्छे से एग्जांपल होने चाहिए. सेकंड अगेन एवरी थीम के नोट्स होने चाहिए. मोस्ट ऑफ इट वुड बी क्लैशिंग विद द पॉलिटी नोट्स, तो एक तरीका से इजी हो जाता है, तो वो सारे. एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स, अगेन जुडिशरी, पार्लियामेंट, पुलिस, LSG, जितने भी स्टैटिस्टिक्स है वो रेडी होने चाहिए. एंड फोर्थ सर करंट अफेयर्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मतलब पूरा पेपर ही डायनामिक है, तो जितने भी सर एवरीडे बेसिस में आपको लगता है कि कुछ आया है तो वो आपके नोट्स होने चाहिए. जैसे अगर आज ट्राइब्यूनल में कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने कमेंट किया है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, द एंटायर ट्राइब्यूनल पार्ट. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है कि दिल्ली वर्सेस सेंटर का केस में, तो वो जजमेंट इज ओनली पूरा इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर ऑल प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स. तो जितना भी आपका जजमेंट्स या जितने भी आपके डेवलपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली the honorable prime minister president got elected I mean, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, the role of president and her role in a democracy, या different version की अभी कैसे women president आई, तो how will it impact the Indian democracy. तो ये सारे चीज जितने भी आते हैं इसके अच्छे से नोट्स होने चाहिए, because these are and इसीलिए सर पेपर 2 can be easily predicted. ये जितने भी ऊपर टॉपिक्स है, मिशन कर्मयोगी अगर आया है तो वो डेफिनेटली आना है. या फिर हम एक और टाइम में वो आया था सर कि चैंपियंस ऑफ चेंज वाला, जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन कर रहे हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ नीति आयोग कर रहा है, तो वो उस समय आया था. इट डायरेक्टली केम इन द पेपर. तो इसीलिए करंट अफेयर्स फॉर पेपर 2 इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली सर मेरे पर्सनल ओपिनियन में किरण सर का नोट्स, मतलब आई हैव स्कोर्ड 160 आल्सो सर जस्ट स्टडीइंग दैट नोट्स इन पेपर 2. तो वो किरण सर का पब्लिक किरण सर ही टीचेस इन वाजीराम एंड रवि, उनके पेपर 2 के नोट्स आर रियली, मतलब whatever I say would be less for that. तो वो तो पूरा अच्छा से पढ़ लो. Okay, fine. So with this, like we are almost done with the GS papers, optional papers. Now let's talk about little bit about the essay. So these days philosophical essays are coming. How to entertain philosophical essays according to you? Whether it should be based on the any particular knowledge, GS knowledge, or you should dwell more internally, like Vidwan Bani और उस ज्ञानी बाबा टाइप मोड में चले जाइए.
सर वही है सर, इट्स एनीबॉडीज गेस कि क्या है, मतलब अगर ऑनेस्टली मैं अभी कुछ बहुत अच्छे से बोलूं तो आई वुड नॉट बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग. बट एक चीज है सर, आई जस्ट स्टार्ट विद समथिंग व्हिच आई डिडंट टेल यू पर्सनली, बिकॉज आई थिंक वी वर हैविंग दिस सेशन लास्ट ईयर हमारे मेंस के टाइम में, और आपने एक एग्जांपल दिया था कि हाउ यू स्टार्टेड योर एसे, कि यू स्टार्टेड विद एन कॉन्वर्जेशन बिटवीन, कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा है और एंड में भी आपने वही उसको लिंक करके एंड किया कि वो कॉन्वर्जेशन को. एंड सर यू वोंट बिलीव मी, आई डिड द सेम इन माय फर्स्ट एसे दिस टाइम. ऐसे था कि ऐसे कुछ यही था कि आई एम फॉरगेटिंग द एसे, जो फिलोसॉफिकल एसे था. और तो कि हाँ टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी के ऊपर था कि हाउ टेक्नोलॉजी से सब बाहर चल जा रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ रहा है तो थिंकिंग प्रोसेस कम हो जा रहा है. सो आई स्टार्टेड विद दैट कि एक टीचर एक स्टूडेंट को क्लास में पढ़ा रही है एंड स्टूडेंट इज लाइक मैम आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं फ्यूचर में कौन सा करियर लूं. तो वो चीज अगर 1980s 1970s में होता तो स्टूडेंट टीचर वुड हैव सेड कि आप घूमो, सबसे बात करो, ये करो, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर एप्टीट्यूड. सिमिलरली अगर वो 21st सेंचुरी में अभी होता, सेकंड सिनेरियो में, तो वो होता मैम बोलती बेटा आप जाओ एक कंप्यूटर टेस्ट ले लो और वो आपको बता देगा कि आपका एप्टीट्यूड किस में है और आप वही सेलेक्ट कर लेना. तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, और उसी को मैं एंड में लिंक भी किया था कि कैसे हुआ. तो ये वही चीज है कि सम ऑफ द थिंग्स व्हिच मेंटर्स कैन एक्चुअली टेल, वो बहुत बार हमें खुद को नहीं पता चलता. सेकेंडली सर कैसे करना है, आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ. मतलब हम खाली अगर वही चीज होता है कि सर वन डायमेंशन को हम पूरा नहीं कर सकते. अगर फिलोसॉफिकल ऐसे डजंट मीन कि आप इमैनुअल कांट को लेके पूरा ऐसे खत्म कर दिए. मतलब इट हैज टू बी मिक्स ऑफ बोथ, यू हैव टू शो इट्स एप्लीकेशन, दैट इज द मेन आइडिया. मतलब हम ऊपर ऊपर लगता है प्राइमा फेसी इट इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बट एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज्यादा थिंकिंग है कि कैसे वो अभी अलग अलग सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब में कैसे हम उसका वो देखते हैं डायमेंशन, IR. तो और ऑब्वियसली फिलोसफी का आएगा तो इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज देन यू आर शोइंग योर इंटरनल थिंग, बट इट शुडंट बी ओनली फिलोसफी, इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग. Fine. So now with this, we end the conversation between academic conversation. So let's move to some other type of conversations, which is important for the aspirant. I would like to ask, since I usually remember the first meeting of ours, you were quite tensed at that time. So somehow afterwards, I don't think so you ever felt tensed. Okay. So what is the role of mental health? क्योंकि mental health में भी aspirants लिख तो देंगे, but how to manage it? Since I will say like you have been in that phase, you overcame that phase, and now you are back into your, I will say, college life kind of thing. So basically I do see your status and all, so I can relate that हाँ ये पहुंच गया अपना कॉलेज वाली लाइफ स्टाइल में दोबारा, हंस खेल रहा मजे से हम. so so how to deal with that situation? सर इट इज मतलब द एंटायर प्रोसेस इज सो ग्रूलिंग कि बहुत बार तो ये हो जाता है कि हम प्रीलिम्स या मेंस का टेस्ट पेपर मिलता है एंड वी हैव नॉट परफॉर्म देयर, तो हमें लगता है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वी फील सो लेट डाउन कि इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा है. एंड इट इज natural, I think every aspirant will go through that, it is a cycle, and that's what makes you an officer at the end of the day. So I think सबसे पहला तो यही है कि सर we should have list of people whom we actually can always go to. For example, I had you many times interview में भी, I think one day before I called you and I said कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, and you were always very positive, and I think that is the most important thing कि don't worry यार, तो you've done the right basics, तो वो हो जाएगा. तो एक तो यही है कि you should have a list of people जो आप, but whenever you feel like, I had my friends also, एक दो है कि I can call them at 12 at night and I say यार अच्छा नहीं लग रहा है. In fact yesterday I called one person, imagine after getting selected, कि भाई now this is a transformational change and I cannot, many times I cannot absorb whatever it's coming, so how to maintain that. तो एक ये. सेकंड सर नेगेटिविटी बहुत है, मतलब 99% नेगेटिविटी है, 1% पॉजिटिविटी है अराउंड. तो आप किसी को ये पूछो वो आपको नेगेटिव कर देगा, तुरंत लेट डाउन कर देगा. तो इसीलिए व्हेनेवर समबडी अराउंड यू इज नेगेटिव पर्सन, अवॉइड दैट. मतलब उससे बात ही मत करो. अगर वो आपको बोलता है कि यार तेरा नहीं होगा, लग रहा है कि यार ये तो IITians का ही होता है UPSC में, तो भाई उससे तो बात ही मत करो. बोल भाई किसी का नहीं होगा, अगर एक बंदे का भी हो रहा है तो मेरा होगा. बस यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि वो मेरे को पता ही नहीं है, बस आई नो आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम डूइंग जस्टिस टू माय प्रिपरेशन, खत्म बात. तो ये है. एंड तीसरा सर, एज एन इंडिविजुअल आई थिंक आई वाज वेरी कनेक्टेड टू माय फैमिली. तो बहुत बार ये होता था कि मम्मी पापा को तुरंत कॉल कर लिया, एंड यू नो हाउ मदर्स आर कि लाइक खाना खा लिया ना बेटा, डोंट वरी सब कुछ यहाँ है, नहीं भी होगा तो तू यहाँ आके धंधा कर लेना. सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी वाज ऑलवेज देयर कि पेरेंट्स आर एक्चुअली देयर. तो ये है. तो दीज थिंग्स वो होता ही है. एंड ऑल्सो सर स्टडीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना है. मतलब ठीक है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड करियर है पूरा लाइन में, बट इट्स ऑलरेडी इफ यू नो थोड़ा बाहर जाके कुछ कर लिया, मजे करके आ गए, एक यू टेक अ नाइट ऑफ, बिकॉज इतना पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली कि आप पूरा बैठ के 4-5 महीना पढ़ लो.
बिल्कुल, मतलब कहने का मेरा भी यही होता है कि यार मशीन नहीं बनना है, हमें थोड़ा सा इमोशंस अपने अंदर का जगा के रखना है यार, राइट सर, राइट। कैसे ना कैसे। ठीक है, तो अगेन ऑन द सिमिलर लाइन क्वेश्चंस, हॉबीज। ठीक है, इंटरव्यू पे आगे प्रिपेयर कर, फिर पता लगता है यार ये भी मेरी हॉबी थी, ये भी नहीं थी। तो विद इन द एस्पायरेंट लाइफ हॉबीज को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? सर अगेन मतलब मैं तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ अस एस्पिरेंट्स जिनका हॉबी है ही नहीं सर, बिकॉज एटलीस्ट वी थिंक हमारा हॉबी तो डिस्कवर होता है सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ यू कि भाई तेरा ये हॉबी है, सो यू मेंटेन दैट। सो फर्स्टली क्या आइडेंटिफाई कि हॉबी क्या है, एंड इट कैन बी वेरी ट्रिवियल। मतलब मैं देखता हूँ बहुत लोगों का हॉबी ये होता है कि वही कि मेरा हॉबी था टेकिंग इनिशिएटिव्स, या हॉबी ये होता है कि कनेक्टिंग विद द पीपल। हॉबी कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडेंटिफाई योर हॉबी। सेकंड इज ऑलवेज ट्राई टू डिवोट एटलीस्ट सम टाइम इन द वीकेंड। आप पहले सेलेक्ट कर लो, डोंट थिंक कि हम रैंडमली करेंगे, आज चूज करेंगे आज करना है। यू एक्चुअली डिवोट अ डे और वहां पे 2-3 घंटे कि मैं इतना हॉबी कर लूंगा। तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि आप बन जाओगे। तो हॉबी कैन बी कि से somebody likes playing guitar, somebody likes watching movies. So I actually मैं अपना डॉवटेल करके watching movies based on real life stories कर दिया, ताकि मैं इंटरव्यू में भी उसके बारे में बात कर सकता हूँ। और फिर मैं ये करता भी था सर, एवरी वीकेंड आई मेड श्योर कि मैं कुछ मूवी देखूं वो बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज हो। फॉर एग्जाम्पल भाग मिल्खा भाग हो गया, MS धोनी हो गया, इनविक्टस हो गया। सो दैट एटलीस्ट एक एंटरटेनमेंट कंपोनेंट तो है ही, दूसरा एक कुछ ये भी हो गया, मेरा मटेरियल भी रेडी हो गया इंटरव्यू के लिए। तो इसी टाइप का आपको हॉबी करना है कि सो दैट एटलीस्ट यू फील एंटरटेन्ड, एंड सेकेंडली वो आपका इंटरव्यू में जाके हेल्प करे। तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो स्पोर्ट्स खेल ले, मतलब बट एटलीस्ट डिवोट अ टाइम एवरी वीक फ्रॉम नाउ। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि मेंस के बाद आप वो 2 महीने में हॉबी कर लो बढ़िया से, वो बोलने का बात है, वो होता नहीं है सर। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी हेल्थ। ठीक है, ये अच्छा था। तो लास्ट क्वेश्चन सिंस वी आर अबाउट टू एंड दिस सेशन। ठीक है, सो हाउ SOMP एज अ प्लेटफॉर्म हैज हेल्प्ड यू? सर आई टेल यू हाउ, मतलब पहले तो यही है कि एसओएमपी। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाउ यू गॉट द नेम दैट कोई SOMP नाम का भी प्लेटफॉर्म है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा स्टोरी भी है एक्चुअली। क्या है कि लास्ट ईयर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, आई मीन थर्ड अटेम्प्ट में, और मेरे दोस्त का हो गया था, गौरव। सो ही गॉट इनटू हम्म, इंडियन पोस्टल सर्विस। सो ऑब्वियसली एक होता नहीं है, किसी का भी होता है, तो वी ऑलवेज टेंड टू मेक कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं गलत, तू बता दे, समथिंग यू हेल्प। एंड ही टोल्ड मी भाई कि गो टू एसओएमपी। ही वाज लाइक कि भाई एक चीज है, एंड बिकॉज वी ऑलवेज हैव नो, वी ऑलवेज टॉक वेरी इनफॉर्मली, भाई सही में बताओ वो कोचिंग कुछ काम करते हैं कि क्या ही है, मतलब पैसे है? तो बोलता है नहीं भाई नहीं। ही एंड हाउ ही कन्विंस मी, ही सेड कि मेरे काफी दोस्त है जो एसओएमपी में गए थे, जिनका बढ़िया क्लियर हो गया है, और मैं भी खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। तो दैट्स हाउ आई केम टू नो समथिंग अबाउट एसओएमपी। मतलब मीडिया मार्केटिंग वगैरह तो सर आप खुद भी बहुत कम करते हो, मेरे को लगता है। आई हैव नेवर सीन एसओएमपी मार्केटिंग बहुत ऊपर बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इनफैक्ट मैं भी किसी को बोलता हूँ राइट नाउ, तो हाफ ऑफ द पीपल डू नॉट नो, बिकॉज आप मार्केटिंग नहीं करते, यू ऑलवेज बिलीव इन कि एक्चुअल वर्क एंड नॉट मार्केटिंग। तो ये था, एग्जैक्टली। तो ये चीज यही था। तो फ्रॉम अ फ्रेंड आई केम टू नो अबाउट एसओएमपी। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन, हाउ SOMP एज अ प्लेटफॉर्म हैज हेल्प्ड यू? तो सर यही है कि एक तो सर ना कि एक इंडिविजुअल को, हमें फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो अच्छे कॉलेज से या नॉर्मल पढ़ाई भी किया है, सो ही नोज बेसिक, वो अगर उसको आप 1 साल दे दोगे तो कर लेगा यूपीएससी का थोड़ा बहुत जो बेसिक है। और सर मैं भी वही था कि 2-3 साल से मैं वही कर रहा था, जो पूरा अपना मेंस 365 लेके पढ़ने लग गया, जो भी था वो करने लग गया। बट सर वो आपको प्रीलिम्स क्लियर करा सकता है, मेंस भी क्लियर करा सकता है चाहे तो बहुत बार और सर्कमस्टेंस में, बट फाइनल लिस्ट में नाम आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वहीं पर गेम आता है सर अल्टीमेटली, दैट गैप दैट हैज टू बी ब्रिज, मतलब स्टडीज एंड स्मार्ट स्टडीज। और आई थिंक सर वो कंपोनेंट दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आई मेरा सर टू बी फ्रैंक, मैं आपसे बहुत लेट मिला था, तो मैं तब तक अपना एक्सपीरियंस ही समझ गया था कि क्या करना है थोड़ा बहुत। और दैट एंड आई केम टू नो आफ्टर तब कि आप भी वही बोल रहे हो कि वो जो मैं 4 साल 5 साल में सोचा हूँ, आप वही चीज बच्चों को बोल रहे हो। सो हैड आई नोन यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं वो सब कर लिया होता। तो वो चीज था। दूसरा यही कि सर इंटरव्यू अगेन आई वाज गेटिंग 140 2 साल से, अभी 170 आया, 169 170। तो वो इसीलिए आया है कि बिकॉज आई केम टू नो, आई मेट यू एंड हाउ वी डिड इंडिविजुअली कि A to Z चीजों में हमने, आप यू वर क्वेश्चनिंग मी एंड यू वर नॉट क्वेश्चनिंग ओनली, यू वर आस्किंग मी कि ऐसे आंसर में डॉवटेल कर। दिस इज बिकॉज यू लिव्ड माय लाइफ एंड देन यू गेव मी आंसर व्हिच आई एम सपोज्ड टू गिव टू द इंटरव्यूअर। और वो काफी आंसर्स मैं देख उस समय बोल भी रहा था, और मैं सोच भी रहा था मन में कि यही तो आपने कहा था कि वैक्सीन वगैरह के लिए, द वन वी वर डिस्कसिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो दैट गैप सर, दैट कि कैसे पढ़ाई करना है, लाइक पढ़ाई तो हम सभी कर लेंगे, हार्ड वर्क डिसिप्लिन ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट।
that sufficient is वो competition को आप कैसे ऊपर ले जा सकते हो, and that will only somebody like you only can tell you us because आप इतने experienced हो. तो ये चीज था कि इंडिविजुअल बेसिस, और दूसरा यही है कि सर इंडिविजुअल अटेंशन, आई थिंक वो बहुत ज्यादा मिला. पहले कई और इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलता था, इट वाज ऑलवेज लाइक अ मास थिंग. इनफैक्ट मेंस के बाद भी इंटरव्यू हम प्रिपरेशन बहुत पहले चालू कर दिए थे. लाइक आई रिमेंबर कि दिसंबर से चालू हो गया था, जनवरी से. तो ये सब चीज जो है सर वो काफी गेम चेंजिंग था. Okay, fine. Thank you for your kind words. Last question. Any advice for the people who have not been able to clear prelims? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि I do not want to say anything. I want you to take the mic. सर मेरे हिसाब से तो पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आई वुड टेल हिम और हर कॉन्ग्रेचुलेशन. मेरे साथ ये नहीं हुआ और मैं भुगत गया. बिकॉज इफ आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो और आपका प्री नहीं हुआ तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका बेसिक प्रिपरेशन रेडी हो गया है. प्रीलिम्स के लिए भी एटलीस्ट आप 50-60% रेडी हो, जो 40% है वो आप बाद में कवर कर लोगे. नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज फॉर मेंस प्रिपरेशन. प्रीलिम्स के बाद बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है मेंस के लिए, 3-4 महीना ही मिलते हैं और उसमें आप ठीक ठाक कर सकते हो. बट इफ यू हैव डन एटलीस्ट 6-7 मंथ्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन अभी से, तो सर दैट मतलब आप डायरेक्टली लिस्ट में आ जाओगे फॉर श्योर. तो इसीलिए आई थिंक ऑब्वियसली एवरीबॉडी फील्स बैड, इवन आई वुड हैव फेल्ट बैड कि नहीं हुआ. सो और वो दैट इज बेस्ट कि आप 5-6 दिन अपना टाइम लो, पर उसके बाद कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड फोकस एंटायरली ऑन मेंस, ताकि आपका जो प्रॉपर जो बेसिक चीज है, नोट्स मेकिंग, डायग्राम, ये सब रेडी हो जाए. एंड फ्रॉम जनवरी आई थिंक आपको प्री से फरवरी से प्री लगना ही चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं हुआ है. और वो आप आई थिंक यू आर एक्चुअली सेइंग दैट ऑन अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म कि क्या करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बचा है सब कुछ, मतलब और सब तो आप सब कुछ कर लोगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कि कैसे करना है एंड हाउ डू यू अटेम्प्ट, रादर देन कितने अटेम्प्ट कर. बैठ के 2 घंटा उसको दो, प्रॉपर लिखो और फिर एनालाइज करो 4 घंटा कि हम क्या किए जो 2 घंटा में, कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, क्यों नहीं हुआ है. एंड दैट इज ओनली द थिंग व्हिच कैन सेपरेट यू फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बिकॉज पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं. Fine. So thank you very much, Anup, for giving almost 1 hour to us and guiding future aspirants and the current aspirants as well. Okay, I shall switch off the recording first.